شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس، آپ سب کی خدمت میں سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ آج میں آپ کے ساتھ روشنی کا پتھر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ روشنی کا پتھر کون ہے اور یہ کہاں سے آیا اور یہ کس کس رستے سے گزرا اور کہاں پر ٹکا اور کہاں پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ روشنی کا پتھر اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پتھر پر ایوا خدا، جس کو بعد میں یہوہ خدا کا نام دیا گیا اور پھر اس کا نام یہشوا ہوا اور پھر اس کا نام روح ہوا۔ پہلا زندگی دینے والا ایوا خدا اور دوسرا یہوہ خدا یعنی کہ ہاتھ دکھانے والا، طاقت دکھانے والا، اور تیسرا یہشوا یعنی کہ نجات دینے والا، چھڑانے والا، اور چوتھا ساتھ رہنے والا، جو دکھائی نہیں دیتا لیکن ہر وقت اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اس کا جو ظہور ہوا یہ ہے باغ عدن کے ایک کونے میں۔ باغ عدن کہاں پہ تھا؟ گو یہ ساری دنیا خدا نے خود بنائی اور اس کو خوبصورت بنایا۔ اس میں پہاڑ، ندیاں، دریا، وادیاں، چشمے، بہت خوبصورت طریقے سے اس کو ترتیب دیا گیا۔ لیکن خدا نے اپنے بیٹھنے کے لیے، اپنی موجودگی کا احساس دینے کے لیے دو جگہیں مقرر کی فزیکلی طور پہ۔ پہلی جگہ باغ عدن۔ باغ عدن جو ہے وہ اس وقت کا موجودہ ملک اسرائیل ہے، اور اس کے کون سی جگہ پہ ہے اس کے بڑے سارے ایویڈنس ملتے ہیں۔ بہت طرح سے وہ دکھائی دیتا ہے، فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا جانا، فرشتوں کا رکنا، فرشتوں کا بات کرنا، فرشتوں کا ملنا، فرشتوں کا کشتی کرنا، فرشتوں کا بحث کرنا، یہ سب چیزیں صرف اسی ایک خطے میں ہے، اور وہ خطہ ہے ملک کنعان، وہ خطہ ہے موجودہ اسرائیل، وہ خطہ ہے جو دو دریاؤں کے سنگم میں ہے، دو دریاؤں کے جوڑ میں ہے، دو دریاؤں کے میل میں ہے، بلکہ دو دریا، ایک طرف سمندر بھی ہے، ایک طرف سمندر ہے بحر روم، اس کے درمیان میں جو زمین کے اندر اندر دریا چلتا ہے اس کا نام ہے دریائے جہون، اور ایک کا نام ہے دریائے فسون، جسے دریائے یدون بھی کہا گیا، جسے دریائے یردن بھی کہا گیا، جسے دریائے اردن بھی کہا گیا، جسے انگلش میں جارڈن ریور بھی کہا جاتا ہے، اور اسے دریائے فسون بھی کہا گیا اسی وجہ سے جو اس دریا پر رہنے والے لوگ تھے ان کو فلسطی بھی کہا گیا، فلسطینی بھی کہا گیا، کیونکہ وہ فسون دریا کے رہنے والوں کو اس طرح سے نام دیا گیا۔ جیسے انڈس ریور پر رہنے والوں کو انڈین کہا گیا، اور انڈس ریور کو رہنے والوں کو سندھ بھی کہا گیا، کیونکہ اس دریا کا نام سندھ تھا۔ سندھ
सैंड और हिंद और इंडिया, ये एक ही रूट से मिलता जुलता है। अब जब हम देखते हैं कि ये जो दरियाए अदन की बात मैंने की, इसका क्योंकि पहला नाम इसको दरियाए एदन भी कहा जाता था, दरियाए एदन से दरियाए येदन, येदन से उर्दन, उर्दन से जैडन और जॉर्डन बन गया। तो ये इस वजह से ये अदन के साथ मिलता था, और अदन की एक जगह पर, एक कोने पे एक ऐसा मकाम था जहां पर हरे रंग का पत्थर था, कोने में था और हरे रंग का पत्थर था। और जब एवा खुदा उस पर ज़हूर करता और आकर आदम से मुलाकात करता, तो वो पत्थर चमक जाता, रोशन हो जाता। और ये रोशन पत्थर के बड़े सारे एविडेंस मिलते हैं। एक तो बागे अदन में मिलता है, और दूसरा कहन के हाथ में मिलता है कि उसके हाथ में 2 पत्थर होते थे, ओरीम एंड तमीम। तो जब खुदा की रजा को जानना होता था तो उनमें एक पत्थर जो है वो रोशनी देना शुरू हो जाता था। फिर पत्थरों के मकाम अगर हम देखते हैं तो मसीह खुदावंद जब उस चट्टान से निकले, उस कब्र से बाहर निकले, तो जो फरिश्ता है वो उस पत्थर पर बैठा है। जब कुर्बानियां देखी जाती हैं तो वो पत्थर की कुर्बानगाह बनाई जाती है, और फिर जब कुर्बानी पेश की जाती है तो जो कुछ कुर्बानी होती थी, पकाई जाती थी या बनाई जाती थी या ज़बा करके रखी जाती थी, वो पत्थर पे होती थी। तो फरिश्ता उसको टच करता था और छूता था तो वो आग आती और ख़त्म कर देती। फिर मुकाशवा की किताब में लिखा है कि मैं तुझे सफ़ेद पत्थर दूंगा, उस पर तेरा नाम लिखा होगा। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि तू दरिया यरदन से पत्थर उठा लेना, ये तेरी याद होगी। यकूब को देखते हैं कि उसने पत्थर लिया जहां पर उसको खुदा का ज़हूर हुआ, उसने खुदा को देखा, तो वहां पर उसने पत्थर को खड़ा कर दिया और खुदा के साथ अहद बांधा। फिर हम देखते हैं कि आगे मसीह खुदावंद जब गतसमनी में दुआ कर रहे हैं तो उन्होंने उस पत्थर पर जाके घुटने टेके और अपने प्रोग्राम को तरतीब दिया। फिर हम देखते हैं कि हुरब पहाड़ पर जब वो 10 अहकाम की बात आई तो पत्थर की लो, पत्थर की तख्तियां तैयार की गई। और फिर हम ये देखते हैं कि जब इस्माइल को घर से रवाना किया गया और अरबों में उसको भेजा गया, तो बुजुर्ग इब्राहिम ने वही पत्थर जो अदन वाला था, जो कदम ब कदम और हाथों हाथ आगे बढ़ा, तो पहले आदम ने उसको जाना माना, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जो ऑडियो में। तो फिर वही पत्थर सेत के पास आ गया, फिर वही पत्थर आगे उनके नस्ल दर नस्ल चलता हनूक के पास आया, फिर वो मतूसला के पास और लमक के पास, बाबे नूह के पास, और नूह और सिम और इब्राहिम उसके साथ बैठ के तो वो दुआ करते थे, उसकी मौजूदगी को याद करते थे। जो मसीह खुदावंद ने कहा मेरी यादगारी के लिए ये किया करो, तो वो आदम से लेकर इब्राहिम तक उस एवा खुदा की यादगारी हुआ करती थी कि वो इस पत्थर पर बैठता था। फिर वही पत्थर जो है वो इस्माइल को दिया गया और उसने वहां पर रखा, और फिर इब्राहिम और सिम और नूह जाया करते थे इस्माइल को मिलने के लिए, और फिर मिलकर वहां पर दुआ करते थे। उसी पत्थर को बाइबल कहती है कोने के सिरे का पत्थर, और उस कोने के सिरे के पत्थर का नाम जो है उसको कई नाम दिए गए हैं, बहुत सारे नाम दिए गए हैं।
हमने एक पूरा प्रोजेक्ट किया है उस पे कि उस नाम को 99 नामों में तकसीम किया गया है, और उस नाम में एक नाम जो है वो कोने के सिरे का पत्थर है। और बहुत खूबसूरत वो वाक़या दिखाई देता है कि वो पत्थर हुक की तरह डटा रहा, और रूमी सिपाहियों ने इतना मारा, सारी रात का वो जाग रहा है, और उसको कोड़े लगे, उसको कील लगे, उसको नेजा लगा, और वो इस तरह से उसको क्रश किया गया कि उसका खून जो है वो पानी की तरह हो गया। जब उन्होंने उसके दिल में नेजा मारा तो अंदर से खून नहीं बल्कि पानी बह निकला, और फिर उसको चट्टान में रखा गया, पत्थर को पत्थर में रखा गया, और पत्थर के ऊपर फिर पत्थर रखा गया। इस वजह से वो ऐसा घर बन गया, पत्थर में पत्थर को रखा, पत्थर के ऊपर फिर पत्थर रख दिया, और ऐसा मजबूत घर बन गया जिसके बारे में लिखा है कि वो अक्लमंद है जिसने चट्टान पर घर बनाया। वो लोग अक्लमंद हैं जिन्होंने मसीह को मान लिया कि वो मेरे घर का कोने के सिरे का पत्थर है, क्योंकि कोने के सिरे के पत्थर का मतलब होता है जहां से बिल्डिंग शुरू होती है, जहां पर निशान लगाए जाते हैं, जहां से घर को या जमीन को तरतीब दिया जाता है, और उसी से शुरू हुआ। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पैदाइश की किताब में लिखा है अब्रानी जुबान में कि बराशीत 12 एलोहीम अत हशमाइम हारस, बराशीत 12, दुनिया का आगाज बरा से हुआ है। अब्रानी में जो बर है उसका मतलब होता है बेटा, बेटे ने शुरू किया है, और बेटे को अब्रानी में 4 नाम दिए गए हैं। बेटे को पत्थर भी कहा गया है, और बेटे को महबूब भी कहा गया है, बेटे को दिल का टुकड़ा भी कहा गया है, और बेटे को कहा गया है कि ये मेरा सब कुछ है। तो ये दिलदार कहना या महबूब कहना या लाडला कहना या प्यारा कहना या बेबी कहना, ये सारे के सारे इस्तिलाही नाम हैं, क्योंकि खुदा जो है वो ना तो किसी ने जना है, ना उससे कोई जना गया है, ना वो किसी को जानता है। ये कुफर है। लेकिन इस्तिलाही तौर पर हम ये कहते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। यानी कि फरजांद का मतलब है उसका महबूब होने का हक दिया, उसका प्यारा होने का हक दिया, उसका लाडला होने का हक दिया, उसका अपना होने का हक दिया। आपका अपना कौन कौन होता है? खुदा में खून नहीं है, वो रूप लेता है, उसके 4 स्क्वायर हैं। हिजकियल की किताब में लिखा है, मकाशफा की किताब में भी लिखा है, वो 4 स्क्वायर है। अंजीलों में भी लिखा है। एक अंजील उसको बादशाह पेश करती है, एक अंजील उसको बर्रा पेश करती है, एक अंजील उसको इंसान पेश करती है, एक अंजील उसको खुदा पेश करती है। वो एक जगह पे उकाब की तरह नजर आता है, एक जगह पे वो शेर की तरह नजर आता है, एक जगह पे वो बर्रे की तरह नजर आता है, एक जगह पे वो इंसान की तरह नजर आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा बैल है या खुदा बर्रा है या खुदा उकाब है, ये इस्तिलाह है। तो बेटा भी हम इस्तिलाही तौर पर कहते हैं। किसी जगह पे यस्सु को खादम कहा गया है, किसी जगह पे यस्सु को महबूब कहा गया है, किसी जगह पे यस्सु को रसूल कहा गया है, किसी जगह पे यस्सु को पैगंबर कहा गया है,
किसी जगह पे यीशु को इंसान कहा गया है, किसी जगह पे उसको कई तरह से कहा गया, पानी कहा गया है, उसके 99 इस्तिलाही नाम है। तो हम एक नाम पे टिके रहते हैं, वो कोने के सिरे का पत्थर है। उसी ने ही अदन को तरतीब दिया, उसी ने ही इस दुनिया को तरतीब दिया, उसी ने ही इस दुनिया को आगे मजबूत किया, क्योंकि वो इसलिए कोने के सिरे का पत्थर है कि उसके सबब से, उसके जरिया से पूरी कायनात को वजूद मिला है। उसी से शुरू है और उसी पे ही एंड है। जैसे आप पाई का फार्मूला जानते हैं 3.14 को आप किसी भी सर्कल में रख लें तो आपको पता चलेगा उसका फार्मूला, पाई का फार्मूला 22/7 है। तो 22 जो है, जैसे मैंने पहले बताया एक वीडियो में कि 22 को आप जमा करो, 2 और 2 4, तो ये यहोवा का अदद है 4, और यही यशुआ का अदद है। योद हे वाव हे, यशुआ का है योद शीन वाव हे। और दुनिया को 22 हरूफ में, अबरानी के 22 हरूफ में डिवाइड किया गया है। और जब आप क्रिएशन देखते हैं कि आसमान, जमीन बनाया, रोशनी बनाई, गहराइयां, और आगे सूरज, चांद, फरिश्ते, परिंदे, चरिंदे, देवदार, नदियां, इंसान, तो ये 22 हैं। और 22 कितने दिनों में सब कुछ हुआ? एंड 7 में। बिल्कुल पाई का ये फार्मूला है 22/7। जो मैथ से प्यार करते हैं, जो इल्म दोस्त हैं, वो इसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि सर्कल का जो फार्मूला है वो 22/7 है। ये दुनिया का जो फार्मूला है, ये सर्कल का जो फार्मूला है, ये यहोवा का, और जो बटा 7 है यानी कि मसीह का अदद 7 है, और जो 22 है अदद, वो यहोवा का अदद है, वो उस खुदा का अदद है जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। हर इंसान खुदा को देखना चाहता है, लेकिन खुदा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते। खुदा को देखने के लिए मरना पड़ता है, और मरना कोई चाहता नहीं, तो किस तरह देखा जा सकता है? फिर हम उसको महसूस कर सकते हैं उसकी कुर्बत में रह के। तो ये रोशनी का पत्थर चलते चलते फिर वो कहां कहां तक पहुंचा। आप मेरी पहले वाली वीडियो देखते जाएं, आपको इसके सारे पैगाम का, इसकी खूबसूरती का, इसकी वैल्यू का, इसकी ताकत का पता चल जाएगा। इसलिए यस्सु है जो शुरू हुआ, और यस्सु है जो एंड है। और एंड पे भी यही बात कही गई कि मुझे मेरी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। हर एक घुटना। ये क्रिश्चियनों की बात नहीं है, ये यहूदियों की बात नहीं है, ये मुसलमानों की बात नहीं है, ये हिंदुओं की बात नहीं है, क्योंकि जिसने ये बनाया है वो मजहब नहीं बनाता। खुदा का कोई मजहब नहीं है, खुदा का एक ही मजहब है, वो है रास्तबाजी, और वो है उसका कोने के सिरे का पत्थर। उसका मजहब जो है वो यस्सु है। यस्सु को कोई जान जाए तो हर मजहब की वैल्यू को जान जाएगा, क्योंकि यस्सु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदाए कदूस को जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, उस तक पहुंच नहीं सकता, उस तक रसाई नहीं हो सकती। तो रसाई हासिल करने के लिए आप देख ले, हर मजहब में किसी ना किसी जगह पे, अगर बुद्धा को आप देखें तो वो भी कहता है एक आएगा जिसके सर पे कांटों का ताज होगा। आप हिंदुओं को देख लें, वहां पर भी है सफेद घोड़े वाले की बात। अगर आप सिखों को देख लें, वहां पर भी है। अगर आप इस्लाम को देख लें तो उसमें भी है। 25 दफा कुरान मजीद में जिक्र आया है मसीह का। और पुराने अहदनामे को देखें, यहूदियों में वो आज तक मसीह का इंतजार करते हैं। और आप कहां पे हैं? अगर आपको समझ लग चुकी है मसीह की, तो उसको सजदा करें।